Hi everyone, this is Janish Kota here, and welcome back to our video of accounts. So, students, hi, we are going to record chapter number 2, and this is accountancy class 12 CBSE board commerce section students. And the name of the chapter is the constitution of partnership firm admission of a partner. So, students, this is my lecture number 2 of this particular chapter. I am solving the unsolved part of your textbook. So let's get started, students. Please subscribe to my channel if you haven't done yet. And students, also we are running a lot of online and offline tuitions classes. So if you're looking out for any such help, please let me know. The number is given right in front of you on the screen. So students, this is my textbook, and in the previous class, I have completed till sum number 12. Rao and Swami, we have done this. So today in this lecture, I'm going to start with sum number 13. Okay, bachche log? So sum number 13, I'm going to read the sum. It says compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase. So years कितने साल के लिए purchase करना है? 4 years of the average profit of last 5 years. तो last 5 years का students average profit find करना है. चलो perfect. और ये 5 साल के profit के figures दिए हैं. Let's do that. चलो, so students, let's start. This is my Excel sheet over here, and let me just see. This is sum number 13, and this is page number 100. 13. So I'm going to write over here sum 13 and page 100, students. Okay, perfect. So let's start, students. What do we need to find? सबसे पहले हमें average profit find करना है. Students, मैंने screen के ऊपर काफी सारे formulas already लाके रख दिए हैं, which will help us to find the entire sum. So सबसे पहले average profit है, students, total profit upon number of years. So what are the profit? 40, 50, 60, 50, 60. चलो, तो 40,000 plus 50,000. 40,000 plus 50,000 plus 60,000 plus 50,000 and plus 60,000. चलो, एंड इस पूरे पार्ट को हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें डिवाइड करना है. किसे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 5 करना है. टोटल 5 नंबर है, तो स्टूडेंट्स डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5 करेंगे यहाँ पर. परफेक्ट. सो स्टूडेंट्स कितना आएगा? 40 एंड 60, 1,50,000, 1,50,000 एंड अगेन 2,00,000, 2,60,000. तो स्टूडेंट्स टोटल 2,60,000 आ रहा है. 2,60,000 एंड दिस 2,60,000 हैज टू बी अगेन डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग. Perfect. And the answer will be, students, so my average profit is equal to, so students, my average profit will be 52,000 rupees, 52,000 rupees. Okay. Because if I divide 260, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 10, 52,000. And students, अब उसके बाद क्या करेंगे students? After this, now I need to find the goodwill. So students, goodwill का formula क्या है हमारे पास? Okay. Okay. Students, goodwill average profit into number of years. Average profit है 52,000 rupees, 52,000 एंड मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय कितना ईयर्स है स्टूडेंट्स? कितने ईयर्स के लिए परचेज करना था? 4 years परचेज लिखा था. 4 years परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. एंड विच कम्स टू स्टूडेंट्स हाउ मच? 2,08,000 रुपीज. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज माय फाइनल आंसर. 2,08,000 ऑफ सम नंबर 13, पेज नंबर 100. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स. On your screen, on the screen, students, you can see all the 6 formulas. Please pause the video and do one thing. You have to copy those down. फटाफट से सारे के सारे formulas copy कर लो, because this formulas are going to help us out to solve more sums ahead. चलो, sum number 14 now. Sum number 14. Let's read the question. So sum number 14 says, okay. Firm's capital in the business is 2 lakh rupees. The normal rate of return is of capital is 15%. During the year 2015. The firm earned a profit of 48,000. ठीक है. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर हमें गुडविल फाइंड करना है. तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे. चलो परफेक्ट. और सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? लेट्स सी. स्टूडेंट्स देखो, आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट, ये 2 फिगर चाहिए. तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया हुआ है. क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 50,000 नहीं. एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है हमें सम के अंदर 48,000. ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है. बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता. तो चलो पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. हम सम से शुरू करेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट से शुरू करेंगे सम को. चलो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया स्टूडेंट्स? हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है. फॉर्म का कैपिटल 2 लाख रुपए स्टूडेंट्स. तो 2 लाख रुपए है. 2 लाख. और एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है स्टूडेंट्स? हमें क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है. इंटू 15%, तो 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे. और जिसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2 लाख, तो 15, तो 30,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा हमारा.
कितना अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज। 2 लाख का 15% कितना होगा 30,000। अब मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें गुडविल का अमाउंट फाइंड करना है। तो गुडविल का सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से, पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करते चलो। तो सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना मिलेगा हमें, एक्चुअल प्रॉफिट एंड माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000। 48,000 इज माई एक्चुअल प्रॉफिट, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अभी जैसे हमने फाइंड किया 30,000 स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स 18,000 सुपर प्रॉफिट मिल गया है। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेस। 3 साल के लिए परचेस किया स्टूडेंट्स, तो गुडविल करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट करेंगे, सुपर प्रॉफिट एंड which will comes to 3 multiplied by 18,000, and what is 18 threes are 18, 36, 56, 54. So students that comes to 54,000 rupees आएगा students हमारा फाइनल आंसर। ओके 54,000 rupees and my final answer is 54,000. Okay students, चलो here I have completed sum number 14 also. Let's move forward to next sum. Sum number 15 करेंगे students। The books of Ram and Bharat, वाह वाह, दो भाई राम एंड भरत showed that the firm's capital as on 31st December 2016 कितना है 5 लाख रुपया कैपिटल है पूरे फर्म का। प्रॉफिट दिया 5 साल का 40,000, 50,000, 55, 70 और 45 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट्स फिर से ऑफ लास्ट ईयर्स अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। वापस सुपर प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर गुडविल फाइंड करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तो सेम फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे। मैं सम नंबर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सम नंबर 15 है स्टूडेंट्स, सम नंबर 15 है। और सबसे पहले मैं फिर से एक बार नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करके देख लेता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है, वो लोग ने कैपिटल 5 लाख रुपए डाला था, 5 लाख रुपए डाला था स्टूडेंट्स, और 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच परसेंटेज 10% दिया हुआ है। तो 5 लाख का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, विल कम्स टू हाउ मच 50,000 रुपीज। और ये 50,000 हमारा क्या मिल गया हमें, 50,000 रुपीज स्टूडेंट्स हमें मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमें क्या मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिला है। ठीक है, आपको चाहिए तो वहां लिखते जाओ रुपीज। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मुझे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। चलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी जस्ट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। सो लेट्स फाइंड टोटल प्रॉफिट कितना दिया हमें 50, 55, 70। जो सबसे पहले 50 है, 50,000 प्लस 50,000 के बाद क्या है, ये 55,000 है। 55,000 प्लस 70 और 85। अरे यार कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, 70 प्लस 85 और क्या है 40,000। स्टार्टिंग में सबसे पहले 40,000 भी था स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक 40,000 मिस किया मैंने, 40,000 प्लस ओके। और स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फिगर है, तो मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा इसको पूरा का पूरा। सो 40 एंड 50 90, 90 और 50 कितना होगा 1,40,000। 1,40,000 और 5 बाजू में रखते हैं, 1,40,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,20,000 और 3 लाख। स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मुझे 3 लाख अमाउंट आ रहा है। 3 लाख स्टूडेंट्स, और 3 लाख को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, एंड फाइनली जो स्टूडेंट्स मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट विल कम्स टू ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज। तो स्टूडेंट 60,000 रुपीज इज माई एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे मेरा एवरेज प्रॉफिट भी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे अभी हम लोग, वी कैन नाउ फाइंड, तो ये पूरा का पूरा चीज हमें अब यहाँ पे वापस फाइंड करना है। सबसे पहले हम पहले फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपीज है, एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिला है 50,000 रुपीज मिला है। ये जो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, और हमारा फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स 10,000 रुपीज इज माई सुपर प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years। 3 years परचेज स्टूडेंट्स, चलो तो 3 इंटू 10,000 करेंगे, सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपीज हमारा। स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर 30,000 रुपीज इज माई फाइनल आंसर। ये मेरा स्टूडेंट्स क्या आ गया, गुडविल का अमाउंट आ गया यहाँ पर। चलो वेरी इजी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच आई रियली अर्न, तो वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड करना काफी इजी है, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, एंड फाइनली गुडविल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल के लिए परचेस किया तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। नाउ
Number 16, Rajan and Rajni are partners in a firm. The capitals were Rajan 3 lakh rupees and Rajnika 2 lakh rupees. Total 5 lakh rupees उनका कैपिटल है. During the year 2015, the firm earned a profit of rupees 1 lakh 50. तो 1 lakh 50 earn किया, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो स्टूडेंट्स. कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा, उसका अलग से एक फॉर्मूला है. Assuming that the normal rate of return is 20%. चलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है. ये सम नंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले 15 से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम नंबर लिख लेता हूँ एक बार. सम नंबर 16 लिख रहा हूँ. पेज नंबर 101 है स्टूडेंट्स. और जितने भी ऊपर फॉर्मुलाज से मैं सारे के सारे फॉर्मुलाज एक बार नीचे लेके आ रहा हूँ, बिकॉज अब ये सारे फॉर्मुलाज की मुझे जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स. सो इसको नीचे सामने कॉपी पेस्ट करके रख देता है. ये यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ. ठीक है. सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे क्या फाइंड करना है कि मैं नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेता हूँ इसी सम के अंदर, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं है कितना है. ओके स्टूडेंट्स देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल 5 लाख रुपया है. कैसे टोटल 5 लाख है? राजन और रजनी दो है, उसका एक का 3 लाख है एंड दूसरे का 2 लाख है. तो व्हाट इज 3 + 2? 5 लाख रुपीज टोटल है. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है. ठीक है. चलो तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है? 5 लाख रुपया. और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है स्टूडेंट्स. तो 20/100 करेंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है. तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा 20% 1 लाख रुपया हो जाएगा. ठीक है. तो 1 लाख रुपया स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है. कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए क्या होता है फॉर्मूला? देखो नंबर 5 के ऊपर देखो, नंबर 5, सुपर प्रॉफिट चाहिए इंटू 100/NRR. तो एनआर हमारे पास ऑलरेडी है, एनआरआर 20% दिया है, सुपर प्रॉफिट नहीं है. तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे पहले. चलो ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि भाई हमने 1.5 लाख रुपया कमाया है. तो एक्चुअल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स 1,50,000. माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट अभी जैसे हमने फाइंड किया 1 लाख रुपीज. तो विच कम्स टू स्टूडेंट्स हाउ मच? 50,000 रुपीज हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया. अब फाइनली स्टूडेंट्स मुझे गुडविल फाइंड करना है. आई एम गोइंग टू फाइंड गुडविल, बट कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 50,000. मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड डिवाइड बाय स्टूडेंट्स एनआरआर कितना? 20 है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखेंगे तो 20 नीचे ना, तो एक जीरो और एक दो, एक एक जीरो तो कट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 5 लाख इंटू 2, 50,000. और ये 005 हो जाएगा. 50,000 इंटू 5 कितना होगा? स्टूडेंट्स ये 2.5 लाख रुपया. अगर आपको इसको कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट कर लो. एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपया होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि 50,000 है. ठीक है. तो एक तो 0 0 कट हो जाएगा और ये 2 और 5 बन जाएगा. तो 5 5 25 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स मेरा फाइनल आंसर है 2.5 लाख रुपया स्टूडेंट्स. और ये मेरा गुडविल का अमाउंट है 2.5 लाख रुपया. परफेक्ट. चलो तो स्टूडेंट्स ये 2.5 लाख रुपया मेरा गुडविल का अमाउंट आ गया यहाँ पर. एंड यहाँ पे मेरा सम होता हुआ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये सम नंबर 16 हमने यहाँ से शुरू किया था. ठीक है. मैं सबको अंडरलाइन कर लेता हूँ. ये जो भी हमारे सम्स है वहां से हमारे सम शुरू हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स अब तक इस वीडियो के अंदर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 4 सम्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू द 5th सम नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एंड लास्ट सम ऑफ द वीडियो है. चलो. और अगेन स्टूडेंट्स सम नंबर 16 है. यहाँ पे नंबर अभी मैं सम नंबर 17 कर रहा हूँ. ठीक है. ये सारे फॉर्मुलाज मैं फिर से एक बार स्टूडेंट्स नीचे लेके आ रहा हूँ, बिकॉज ये सारे फॉर्मुलाज में से काफी सारे फॉर्मुलाज की मुझे जरूरत फिर से पढ़ने वाली है. हमें नहीं पता हमें कौन सी सम की जरूरत कब पड़ सकती है. ठीक है. तो सारे मैंने फॉर्मुलाज सामने लिख लिया है. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम नाउ. 17 सम. A business has earned an average profit of 1 lakh rupees during the last few years. तो 1 lakh स्टूडेंट्स क्या हो गया? मैं एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है. Find out the value of goodwill by capitalization method. Very important, underline the word capitalization method. हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Given that the assets of the business are 10 lakh rupees and its liabilities are 1 lakh 80. Okay, तो asset भी दिया, liability भी दी है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है. चलो ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड से वापस वो करना है हमें कैपिटलाइजेशन मेथड. देखो कैपिटलाइजेशन मेथड तो यूज करना ही है, मतलब सुपर प्रॉफिट चाहिएगा. सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से. हमें मेनली तो नंबर 5 से सम कंप्लीट करना है, पर सुपर प्रॉफिट मेरे पास है नहीं. तो सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. एक्चुअल प्रॉफिट तो मेरे पास है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा. तो ये 4 फॉर्मूला यूज करके हम सम को कंप्लीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स. मुझे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद स्टूडेंट्स मैं नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर पाऊंगा.
अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स तो फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे सुपर प्रॉफिट मिल पाएगा। और अगर मुझे सुपर प्रॉफिट मिल गया स्टूडेंट्स तो फाइनली मैं क्या कर पाऊंगा, मैं गुडविल भी फाइंड कर पाऊंगा, अदरवाइज तो गुडविल भी फाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट दिया हुआ है 10 लाख रुपीज माइनस 1 लाख 80 स्टूडेंट्स क्या है, 1 लाख 80 हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। लेट मी जस्ट चेक, तो 10 लाख और कितना हो गया 1 लाख 80 बराबर ना, तो दैट विल कम टू हाउ मच, यहीं पे लिख लेता हूँ, दैट विल कम टू स्टूडेंट्स 8,20,000 रुपीज हो रहा है मेरा रुपीज। तो ये स्टूडेंट्स मेरा क्या मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 8,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। क्वेश्चन में एनआरआर कितना दिया स्टूडेंट्स, 17 नंबर में एनआरआर 10% दिया है, तो 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे और इसका कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा 82,000। ये 82,000 हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 17 नंबर में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख इज माई नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है 82,000 माई नॉर्मल प्रॉफिट, तो दैट कम्स टू हाउ मच, दैट कम्स टू ओनली 18,000 रुपीज इज माई सुपर प्रॉफिट। चलो ऑप्शन 18,000 सुपर प्रॉफिट है, तो अब मैं ये फॉर्मुला यूज करूंगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय एनआरआर कितना 10 है, तो 0 0 कट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स बचेगा क्या, खाली 1,80,000। तो स्टूडेंट्स मेरा गुडविल का अमाउंट है 1,80,000 रुपीज अमाउंट है, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, दिस इज माई फाइनल आंसर 1,80,000। परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स आप मेरी बात सुनते जाइए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव सॉल्व्ड 1 to 12 नंबर्स बिकॉज सारे न्यूमेरिकल्स और सिमिलर सम्स थे। सेकंड वीडियो में आज हमने नंबर 13 से 17 कंप्लीट किया बिकॉज ये जो सारे सम्स थे वो भी सिमिलर टाइप्स के सम थे, गुडविल रिलेटेड थे। नाउ आफ्टर दिस जो मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द जर्नल एंट्रीज। तो उसके लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने सारे जर्नल एंट्रीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा स्टूडेंट्स, आप वो वीडियो भी देखना जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की हुई है एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर्स की। एंड आफ्टर दैट इसी के साथ वीडियो को प्लेलिस्ट आप कंटिन्यू करना स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा थ्रू आउट द ईयर। आप पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड के सारे अनसॉल्व सम्स और सारे पर्टिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं उन सबके वीडियोस मैं बनाते रहूंगा। एंड स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर आल्सो कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशंस, so if you are willing to be a part of it please let me know. Thank you so much students, it was nice having all of you. Bye bye, tada, take care.